Hello dear students, welcome again, and myself Ritesh Jain. I will teach you the chemistry, and today I am taking with the lecture number 4 for 11th class. Okay, in previous video we have already discussed about the SI unit, and today we will study about the physical quantity related to SI unit, and we will study the first physical quantity, that is mass. We consider the mass and weight. Both are similar, but there is a major difference between mass and weight. So first of all, we will understand what is the difference between mass and weight. So understand carefully. Mass. Okay. The amount of particles inside in any substance is known as the mass of that substance. The amount of particles, or I can say the large amount of particles inside the substance, the amount of particles inside the substance is known as the mass of that substance. Mass of that substance. Okay, but what for weight? What is the difference between mass and weight? The gravitational force on any substance is known as the weight of that substance. The gravitational force on any substance is known as the weight of that substance. Okay, this is the major difference between mass and weight. Weight can be changed because weight depend on the gravitational force. अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे मैं अपनी बात कर लेते हैं, अपने ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है. जैसे मान लो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ मून पर जाओगे तो मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं. ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स में बी चेंज, सो द वेट कैन बी चेंज बट मास कांट बी चेंज. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. And the SI unit for both mass and weight is kilogram, that I have already studied to you, already told to you in previous lecture. The SI unit for both mass and weight is kilogram. Okay. So the SI unit for both mass and weight is kilogram. But today we will understand what are the equipment to use the measure for mass and weight. So you know very well, जैसे आपको 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, आप शॉपकीपर पर जाते हो, वो किलोग्राम हो गया, एंड किलोग्राम इज द SI यूनिट फॉर मास एंड वेट. किलोग्राम हो गया. अब आप किसी शॉप पर जाते हो तो शॉपकीपर आपको 5 किलोग्राम शुगर देता है, तो उसको वे करने के लिए उसके पास वेइंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं, वेइंग मशीन होती है. ठीक है. केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स को मेजर करने के लिए, इन ग्राम किलोग्राम केमिकल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है केमिकल बैलेंस. ठीक है. जब आप लैब में जाओगे तो वहाँ केमिकल बैलेंस देखोगे, जिससे हम लोग मास को मेजर करते हैं. ठीक है. सो टू मेजर द मास, द इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड लाइक द वेइंग मशीन, chemical balance, electronic balance. You have already seen in the every show electronic balance. Okay, but listen carefully. Kilogram is the larger unit for laboratory. In laboratory we will use the small unit, not the larger unit.
Kilogram is the larger unit, and the small unit for weight, the mass and weight is milligram, microgram, etc. Gram, milligram, microgram, etc. It is the small unit for kilogram. And in laboratory condition we always use the small unit. How? देखो मैं आपको बताता हूँ लैब में स्मॉल यूनिट कहाँ में लेते हैं, क्यों लेते हैं भैया? देखो लैब क्या होती है, छोटी सी होती है। जैसे आपकी स्कूल की लैब है, आपको प्रैक्टिकल करने हैं तो एक छोटी सी लैब होती है। अब छोटी सी लैब के अंदर हज़ारों केमिकल्स होते हैं। अगर मैं मान लो वहाँ पर मैं लार्ज यूनिट काम में लूँ, जैसे मेरे को एक सॉल्यूशन बनाना है और मैं लार्ज यूनिट काम में ले लेता हूँ, किलोग्राम ले लेता हूँ। सपोज करो अपने को NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बनाना है, यानी NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करना है, और मैं NaCl ले रहा हूँ 20 किलोग्राम। ओके, हाउ मैनी NaCl आई एम टेकिंग हियर? 20 किलोग्राम। अब 20 किलोग्राम का मतलब इकट्ठा हो गया पूरा। अब उसे वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए उतना ही वाटर चाहिए, यानी लीटर्स में चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। अब उसको रखने के लिए आपने सॉल्यूशन बना तो दिया, उसको रखने के लिए उतना ही बड़ा आपको चाहिए कंटेनर। ओके, उतना ही बड़ा क्या चाहिए? कंटेनर। अब बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें एक सॉल्यूशन आ गया। अब आपको 1000 सॉल्यूशन बनाने हैं तो 1000 बड़े बड़े कंटेनर चाहिएंगे। अब वो बड़े बड़े कंटेनर क्या लैब में आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे? ठीक है, नहीं आ सकेंगे। तो देखो यहाँ पर अपन ने लार्ज यूनिट काम में ली जो सक्सेस नहीं है लेबोरेटरी में। अब देखो मैं इसी को स्मॉल यूनिट काम में लेता हूँ। देखो जैसे मैंने साल्ट ले लिया 150 ग्राम, NaCl मैंने 150 ग्राम काम में ले लिया। ओके, अब 150 ग्राम इतना सा होता है, थोड़ा सा होता है। इसको वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए थोड़ा सा ही वाटर चाहिए। एक बोतल के अंदर इतनी सी बोतल में आ जाएगा वो, और इतनी सी बोतल के अंदर एक सॉल्यूशन बन गया जिसको हम लोग रैक में रख देते हैं। अलग अलग रैक होती है, रैक में रख देते हैं। अब एक दीवार पर बहुत सारी रैक होती है, बीच में रैक रखी हुई होती है, दीवारों पर रैक होती है, तो रैक बनाई हुई होती है। तो हम लोग आराम से केमिकल्स को रख लेंगे। खूब सारे केमिकल्स एक छोटी लैब में आ जाएंगे और ईजिली वी कैन डू द प्रैक्टिकल इन लेबोरेटरी। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इन लेबोरेटरी कंडीशन वी विल यूज स्मॉल यूनिट, नॉट द लार्जर यूनिट। ओके, this is about the mass and weight. Take the screenshot, then I will tell you about the volume. Okay, second, volume. The symbol for volume is capital V. And what will be the SI unit for volume? Okay, so let's understand. The SI unit for volume is equals to, first understand, volume is equals to length into width into height. The SI unit for length, meter. The SI unit for width, also meter. The SI unit for height, also meter. So the SI unit for volume, SI unit for volume will be meter cube. Okay, but generally we measure the volume in a liter, milliliter, microliter, etc. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग जो वॉल्यूम है इसको लीटर में, मिलीलीटर में, इनमें मेजर करते हैं। दूध वाला आता है तो आप ये थोड़ी कहते हो कि 2 मीटर क्यूब दूध दीजिए, आप ये कहते हो 2 लीटर दूध दे दीजिए, 5 लीटर दूध दे दीजिए। ठीक है, मार्केट से आप लोग जैसे रिफाइंड ऑयल लेने के लिए जाते हो तो आप क्या कहते हो? आप यही तो कहते हो कि 2 लीटर ऑयल दे दीजिए, 2 मीटर क्यूब थोड़ी कहते हो। तो जनरली वी मेजर द वॉल्यूम इन liter, milliliter, etc. And there are some important relation between liter, milliliter, centimeter cube. Let's understand. 1 liter is equal to 1000 milliliter. You know very well. 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. It's very important. 1 liter is equal to 1 decimeter cube. It's also very important.
Okay, this is the relation of liter between milliliter, centimeter cube and decimeter cube. Okay, now let's understand what the equipments are required to measure the volume. So now we will understand about the equipment to require to measure the volume. Okay, so let's understand what is the equipment required for to measure the volume. There are various equipment in laboratory to measure the volume. आपको ये कह दिया जाए कि 2 लीटर वाटर लेकर के आओ, 5 लीटर ऑयल लेकर के आओ, सो हाउ कैन यू मेजर? आपको इक्विपमेंट कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? सो अंडरस्टैंड, देखिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए टू मेजर द वॉल्यूम. समझिए इसको आप अच्छे तरीके से. देखिए, एक जो इक्विपमेंट होता है जनरली हम उसी को ही काम में लेते हैं लेबोरेटरी में, दैट इज मेजरिंग सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर. ओके, देखो मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है समझो. एक ऐसा इक्विपमेंट होता है ऐसा, जिसमें रीडिंग होती है. जैसे यहाँ हो गया 10 ml, 20 ml, यहाँ हो गया 500 ml, यहाँ हो गया 1000 ml. 1000 ml मीन्स 1 लीटर, यू नो. ओके, तो अब जैसे मैं आपको ये कहूँ कि 500 ml वाटर लेकर के आओ, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को काम में लीजिए, इसमें वाटर को फिलअप कीजिए, 500 ml तक फिलअप कर दीजिए, और फिलअप करने के बाद में आपके पास में कितना वाटर आ गया? 500 ml. मैं आपको ये कहूँ कि 1 लीटर वाटर चाहिए तो इससे आप मेजर कर सकते हो, 2 लीटर चाहिए तो 2 बार मेजर कर लीजिए. ओके, अलग अलग क्वांटिटी के होते हैं ये भी. जैसे 500 का मेजरिंग सिलेंडर भी लैब में होता है, वो छोटा होता है, इस पर रीडिंग होती है. जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, इधर हो गया 500 ml. जैसे मैं आपको ये कहूँ कि 5 ml ही चाहिए, तो उसके लिए बहुत लिटिल आपको ये मेजरिंग सिलेंडर की आवश्यकता होती है. जैसे बहुत छोटा सा ये मेजरिंग सिलेंडर है, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4, 5 और यहाँ आ गया 10 ml. ओके, सो 5 ml के लिए हम उसी तरीके का मेजरिंग सिलेंडर काम में ले लेंगे. ओके, सो फर्स्ट इक्विपमेंट टू यूज द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज मेजरिंग सिलेंडर. अनदर इक्विपमेंट that are required to measure the volume is beaker, conical flask. Second, beaker. एक ग्लास टाइप होता है ऐसा, आगे बीक होती है, इसी कारण से इसको बीकर बोलते हैं. ये देखो ऐसा, ये भी अलग अलग क्वांटिटी के होते हैं. जैसे मान लो कोई 500 ml का हो गया, कोई 1000 ml का भी होता है, 250 ml का भी होता है, 100 ml का भी होता है. तो अलग अलग साइज़ के बीकर होते हैं जिसमें हम लोग वॉल्यूम जो है वॉल्यूम को मेज़र कर लेंगे. तो ये बात हो गई बीकर की. बीकर के बाद में एक होता है कोनिकल फ्लास्क. कोनिकल फ्लास्क you have already see the diagram in class 9th at of conical flask. ऐसा होता है, देखो कोनिकल फ्लास्क. लैब में आप सारे इंस्ट्रूमेंट देख लोगे, ऐसा होता है. ठीक है, अब इसमें भी वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं. कोई 250 ml का होता है, कोई 500 ml का होता है, कोई 100 ml का ही होता है. तो अलग अलग क्वांटिटी के ऐसे कोनिकल फ्लास्क होते हैं. बट टू मेजर इंस्ट्रूमेंट to measure the volume, and that are used in experiment of titration. First burette and second is pipette. These are the most important equipment that will be used in experiment of titration. Okay, so next I will tell you about the burette and pipette. So let's understand what is burette and what is pipette. ब्यूरेट, देखो ब्यूरेट जो होती है ना, ऐसे एक लंबी सी कांच की रोड सी होती है, ऐसे लंबी, और आगे से ऐसे नुकीली सी होती है.
जनरली लैब में 250 ml की ब्यूरेट आपको मिल जाएगी, ठीक है, 250 ml की आपके ट्राइटेशन प्रैक्टिकल में काम में आएगी। अब हमें एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, उस सॉल्यूशन को ब्यूरेट में फिलअप करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये बिल्कुल सक्रिय होती है, तो यदि सॉल्यूशन को हम लोग डायरेक्टली फिलअप करेंगे तो सॉल्यूशन जो है वो ज़मीन पर गिर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग काम में लेते हैं कीप्स होती है, ठीक है, उसके सहारे हम लोग सॉल्यूशन को हम लोग इस ब्यूरेट के अंदर डाल देंगे। आगे एक टूटी भी होती है, टूटी क्लोज होनी चाहिए वरना ये सॉल्यूशन नीचे गिर जाएगा। ऐसी तो होती है ब्यूरेट। एक होती है पीपेट, ऐसे बिल्कुल पतली होती है पीपेट, ऐसे। यहां पर क्या होता है, एक पॉइंट होता है, हम लोग पिपेट के अंदर सॉल्यूशन को कैसे फिलअप करेंगे। यहाँ पर जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना इसको मुंह के लगा करके खींचेंगे, ठीक है, खींचते ही ये सॉल्यूशन इसके अंदर एंटर हो जाएगा और अपने को कहाँ तक फिलअप करना है, यहाँ तक। ये पॉइंट होता है ना, 20 ml की पिपेट भी होती है, 25 ml की होती है, आपके लैब में 20 ml की मिल जाएगी लैब ये पिपेट, ठीक है। तो हम इसको फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद में जैसे ही हम इसको निकालेंगे तो इसको थंब से इम्प्रेस कर देंगे तो सॉल्यूशन वहाँ का वहाँ रह जाएगा, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को हम लोग ड्रॉप करेंगे कोनिकल फ्लास्क में। तो कोनिकल फ्लास्क में कितना सॉल्यूशन आ जाएगा, 20 ml, क्योंकि 20 ml की हम लोग यदि पिपेट काम में लेते हैं तो कोनिकल फ्लास्क में 20 ml जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दीज आर द इक्विपमेंट विच आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम। अब हमने कौन कौन से इक्विपमेंट देखे हैं, मेजरिंग सिलेंडर, वी यूज टू मेजर द वॉल्यूम, मेजरिंग सिलेंडर, conical flask, beaker, burette and pipette. These are the instruments which are used to measure the volume. Okay, now we will understand about the temperature. So let's understand what is the temperature.